Hello everyone, we are starting with a sample paper. This is based on science class 10th. So in this we'll be covering section A. So as you know कि section A में हमारे पास 24 questions होने वाले हैं and we have to attempt only 20 question. तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा पेपर में. और दूसरी बात, आपको पता है कि आपके पेपर्स बहुत पास हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दो और MCQs तो खासकर. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज़ फ्रॉम सेक्शन ए. और यस, in this video we will be covering section A only, and in the next video we'll be covering section B and C as well, so do watch that as well. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इट सेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इलस्ट्रेटेड बिलो. सो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये. तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अदर इज वाटर, एंड दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ new substance. So therefore this is a combination reaction. Why? Because you can see we have two reactants involved and we are getting one product. So this is known as combination reaction. B is correct. In question number 2 you can see which of these is a decomposition reaction. Decomposition basically means that one substance is there and it is breaking down into 2 or 3 substances. So let's see which one is the right answer here. So first वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि you can see we are getting 2 answers and 2 reactants are there. So in B again you can see the same condition is there, so again cancelling it out. In the C case you can see that calcium carbonate is being reduced to calcium oxide and carbon dioxide. So yes, C is the answer, because in this case we are getting 2 products as the resultant. So calcium carbonate on heating decomposes to give us calcium oxide and carbon dioxide. So this is one of the decomposition reaction. Now moving to question number 3, it says choose the correct statement about the given reaction. So you can see इन्होंने हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हम बोलते क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी था और सी से रिएक्ट हो रहा है तो हमें ए सी मिल रहा है. इसका मतलब कुछ चीज़ हमारी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है. इतना तो समझ आ गया. लेकिन अब हमें ये बताना है कि इनमें से, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. बिल्कुल. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट केस में बी इज़ मोर रिएक्टिव दैन सी. सो बी का तो कोई यहाँ पे वो नहीं है कि रिएक्टिव है यहाँ पे सी से, वो तो नहीं है. लेकिन ध्यान से देखो तो बी आपको दिखेगा कि वो करेक्ट ऑप्शन है. क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, सी इज़ मोर रिएक्टिव दैन बी. वाई इट इज़ गिवन? क्योंकि सी किससे कंबाइन हो गया, इट इज़ कंबाइनिंग विथ ए, और वो किसको रिप्लेस कर रहा है, बी को. इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ मोर रिएक्टिव दैन बी, and rest of them are incorrect. Now moving to question number 4, it says study the given chemical equation and choose the correct statements about the given chemical equation. Okay, so हमें दिया क्या हुआ है यहाँ पे, H2S that is hydrogen sulfide reacts with iodine to give us sulfate and hydrogen iodide. In the next case we have manganese oxide, and when react with HCl give us manganese chloride and water plus chlorine gas. So in this case we have to find the correct statement. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फर्स्ट में दिया हुआ है only 1 is a redox reaction, सेकेंड में दिया हुआ है only 2 is a redox reaction. तो redox reaction तो नहीं है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, so we can't say that it is a redox reaction. Now in the second case you can see that it says only 2 is a redox reaction, so this is again incorrect. C, H2S I is the reducing agent in I, while HCl is the oxidizing agent in 2. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, I2 है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज करने में, ना कि H2S. और दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास है मैग्नीज ऑक्साइड एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन 2. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. C is incorrect.
Now moving to question number 5, it says which of these reaction is not a combination reaction? इसमें से कौन सा combination reaction नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखें पहला वाला कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि हमें एक न्यू एलिमेंट मिल रहा है ऑन कंबाइनिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, so this is combination. B is combination, again we are getting hydrogen chloride. C अगर ध्यान से देखें तो we have glucose and it is broken down into carbon dioxide and water, so this can't be the combination reaction, that means C is the option. Now D तो आप देख ही रहे हो कि it is a combination reaction, it is combining to give us sulfur dioxide. Now moving to next question, which says question number 6, what happens when calcium is treated with water? तो जब भी कैल्शियम वाटर के साथ ट्रीट होता है तो क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है ये. और दूसरी बात यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दिस इज़ रॉन्ग. सेकेंड देखें इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत स्लो होता है. इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, दिस इज करेक्ट. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, येस दिस इज ट्रू एज वेल. तो ये ऑप्शन हो गया हमारा 3 and 4. Now moving to question number 7, it says sodium is so soft that, an element A is soft, can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तो इसमें से आपको पता ही है कि आंसर क्या है, इट इज़ सोडियम, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और नाइफ से कट हो सकता है. और दूसरी चीज़ वो रिएक्ट भी बहुत जल्दी करता है ऑक्सीजन के साथ, और इसी वजह से हम इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में. Now moving to next one, question number 8. Generally non-metals are lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? वैसे तो lustrous नहीं होते जितना हमें पता है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो lustrous होता है, and that is iodine. आयोडीन हमारा ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नॉन मेटल है जो lustrous होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the given metals is stored under kerosene to prevent oxidation? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम को भी रखा जाता है, और दूसरा हमारा एक और रिएक्टिव एलिमेंट होता है, दैट इज पोटेशियम. Now moving to question number 10, it says the other silver salt which behaves like silver chloride in sunlight is. So one is silver hydride, other is silver bromide, silver iodide and other is silver nitrite. तो आउट ऑफ दीज 4 एक हमारे पास ऐसा है अगेन जो सिल्वर क्लोराइड के साथ बिहेव करता है, इट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड. ये वाला रिएक्शन आपने देखा भी होगा, बुक में प्रेजेंट है दोनों ही, सिल्वर क्लोराइड का भी और ब्रोमाइड का भी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस लिए रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, or does it require chlorophyll, sunlight? So yes, it requires all of them. जैसे प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है इन्होंने हमें कि इट रिक्वायर्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको क्या क्या चाहिए, ए, बी और सी. क्वेश्चन नंबर 12 says which of the following statements is are correct? So सबसे पहले हमें दिया हुआ है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट. तो जो हमारा पायरुवेट होता है वो क्या फॉर्म होती है, ग्लूकोज की छोटी फॉर्म होती है जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसी के बाद हमारे सारे प्रोसेसेस होते हैं. अब वो कह रहे हैं कि पायरुवेट जो होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. येस, यू कैन डू दिस बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट, दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि फर्मेंटेशन किस में होती है, एनारोबिक में, सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड वन, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो फर्मेंटेशन होती किस में, यीस्ट में होती है. एंड येस, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, it says few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turns
ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। तो ब्लू ब्लैक कलर की कंफर्मेशन किसकी वजह से मिलती है? स्टार्च की वजह से। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। सो येस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 14 says the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। तो होता किस में है ये हमारा प्रोसेस, किस में होता है? इट इज़ देयर इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पायरुवेट किस में ब्रेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। किसकी प्रेजेंस में? माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 15 से सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट only once during one cycle of passage through the body is exhibited by। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, शायद आप उनसे फेमिलियर भी ना हो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि आपके पास अगर ऑप्शन में आते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हिपोपोटामस और एक्सोटियस हो गया एंड एनाबस हो गया, सो ये जो सारे हैं ना, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये पाइसेस ग्रुप से होते हैं, तो सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना कौन से एनिमल्स होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि 4 चैम्बर्ड कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। 3 चैम्बर्ड कौन से होते हैं आपके? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्राe groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body। तो दिस इज़ पाइसेस ओनली। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। सो येस, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। Now moving to question number 17, it says which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow। तो रेनबो में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको पता होगा रेनबो किसकी वजह से बनता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप एंड सनलाइट। तो सनलाइट एंटर करेगी, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम 1 है हमारा एयर, मीडियम 2 है हमारा वाटर। सो अगर ये चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद विल सी सम डिस्पर्जन एज वेल एंड देन विल हैव इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वी गेट टू सी रेनबो। सो येस, इट इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस। रिफ्रैक्शन हो गया एक, तो दूसरा आपका डिस्पर्जन हो गया क्योंकि फैलना लाइट का, और तीसरा आपका क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सॉरी, टोटल नहीं, इट विल बी इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली। रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है क्योंकि। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इट से स्टडी द फॉलोइंग फिगर इन विच अ स्टूडेंट हैज मार्क्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। तो हमें इसमें से देख के बताना है कि कौन से एंगल उस बच्चे ने मार्क सही किए हैं। एक तो एंगल ए अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सही मार्क किया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, दैट्स करेक्ट। आई अगर देखो तो ये भी करेक्ट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गलत है यहाँ पे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कहाँ पे होना चाहिए था? इट मस्ट बी बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे इनका। और दूसरी चीज़ ई भी गलत है। इमरजेंस तो हमारा ये होता है और डी हमारा ये होता है, दोनों इन्होंने उल्टे करे हुए हैं। ठीक है, सो सिर्फ एंगल ए और एंगल आई आपका मार्क करेक्ट हुआ है, दैट्स इट, और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो हमें क्लियर स्काई जो होता है वो ब्लू नज़र क्यों आता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? लेट्स सी। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, सो दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बी इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। सी, वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर दैन द लाइट ऑफ ऑल द कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। यस, दिस इज़ ट्रू कि हमारा जो कलर्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस में होती है? वायलेट एंड ब्लू में। वाई इट इज़ देयर? बिकॉज दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ, और शॉर्टर वेवलेंथ होगी, सो देयरफॉर दे विल be scattered more. Now moving to next question, which is question number 20.
So it says at noon the sun appears white as. Why? Because light is least scattered at that time. So A is the correct option. Rest all are incorrect here. Now question number 21, it says twinkling of star is due to atmospheric dispersion of light by water droplets. So this is not true. Dispersion का कोई relation नहीं है twinkling of star से. It is there because of refraction of light by different layers of varying refractive indices. So हमारे होता क्यों है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास बहुत अलग अलग लेयर्स बन जाती है एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटीज़. अगर डिफरेंट डेंसिटीज़ होंगी तो आपको पता ही है कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स क्रिएट हो जाएंगे. सो अगर डिफरेंट मीडियम होंगे तो उसमें अगर लाइट ट्रैवल हो रही होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वो बेंड होगी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल. Question number 22, it says which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset. So in this case, first is dispersion of light, scattering of light, total internal reflection of light, and the last one is reflection of light from the earth. तो ये होता है phenomena because of scattering of light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि जो रेड कलर होता है वो हमारा बहुत कम स्कैटर करता है. क्यों कम स्कैटर करता है? बिकॉज इट कैन travel longer distances. So therefore we get to see sunrise or sunset and red color as well. So that's why the sky appears red to us. Now moving to next one, question number 23. It says phenomena of scattering of light by colloidal particles give rise to. So ये किसको rise देता है? Tyndall effect को. That's the answer. A is correct. This effect is known as Tyndall effect. Last one, light travels fastest in air, vacuum, glass or diamond. It is B. Vacuum और air में it travels fastest, but सबसे ज़्यादा fast vacuum. If this is the question there in your question paper, choose vacuum as the answer, right? Because it will be the fastest. थोड़ा सा इसमें फिर भी कम होता है, थोड़ा सा ही बिल्कुल. So choose vacuum as the answer if you get this question. Now yes, in the next video we'll be covering section A. Thank you for watching. Have a great day.